Hello students, this is the continuation of chapter 4. So open your textbook on page number 22. Ranini Vav, built by Udaymati, the queen of King Bhimdev, is a specimen of the world famous stepwell. Ranini Vav, a unique example of sculpture and a marvel of architecture of a 7-storied stepwell. It is existing in Patan, the old capital of Gujarat. It was built by King Bhimdev's wife, Queen Udaymati, after his death. UNESCO has designated this site as the World Heritage Site. तो रानी वाव जो भीमदेव राजा की रानी उदयमती ने बनवाई थी वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रानी वाव एक अनोखा उदाहरण है स्कल्पचर का और 7 माला की वाव आज भी पाटन में स्थित है जो गुजरात की पुरानी राजधानी थी। ये भीमदेव की रानी उदयमती ने भीमदेव की मृत्यु के बाद बनवाई थी। यूनेस्को ने इस वाव को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। द रुद्र महालया ऑफ सिद्धपुर built by Siddharaj Jaisingh is considered to be unique architecture of Gujarat. Being a Shivati, Siddharaj associated the name of Mahalaya with Rudra. According to some historians, it must have been a 7-storied palace with Jarokhas. Although presently only 1 story exists, it includes architecture of columns and torrents. तो सिद्धपुर में सिद्धराज जयसिंह के द्वारा बनाया गया रुद्र महालया गुजरात का एक विशिष्ट आर्किटेक्चर माना जाता है। वो शिव भक्त था, इसीलिए उसने जो महालय था उसका नाम रुद्र रखा। इतिहासकारों के मुताबिक ये 7 माले का महल में झरोखे होंगे, लेकिन आज एक ही मंजिला है। इसमें कॉलम्स यानी स्तंभ और तोरण आर्किटेक्चर शामिल है। Malav Lake in Dholka and Munsar Lake in Viramgam were built on the order of Siddharaj's mother, Minal Devi. Sahasraling Lake was built in Patan during the reign of Siddharaj Jaisingh. Apart from this, the Kirti Toran and the Sarmishta Lake are the places of interest in Vadnagar. सिद्धराज की माँ मीनल देवी के आदेश अनुसार धोलका में मलाव लेक और विरमगाम में मुनसार लेक बनवाए गए। सिद्धराज जयसिंह के शासन के दौरान पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब बंधवाए गए। इसके अलावा वडनगर में कीर्ति तोरण और शर्मिष्ठा तालाब देखने लायक है। The city of Ahmedabad was established by Ahmad Shah in 1411 AD. During the Sultanate period, the capital was shifted to Ahmedabad from Patan. The special architecture of Ahmedabad include Fort of Ahmedabad, Fort of Bhadrakali and Jama Masjid. Fort is included in the World Heritage Site. The Jama Masjid at Champaner, the Fort of Champaner and the stepwell of Rani Rudadevi of Adalaj are famous architecture. तो अहमदाबाद सिटी अहमद शाह ने 1411 एडी में अहमदाबाद शहर की स्थापना की। सल्तनत के समय में राजधानी को पाटन से अहमदाबाद शिफ्ट किया गया। अहमदाबाद के खास आर्किटेक्चर में फोर्ट ऑफ अहमदाबाद, फोर्ट ऑफ भद्रकाली, जामा मस्जिद फोर्ट शामिल है और उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। जामा मस्जिद ऑफ चंपानेर, फोर्ट ऑफ चंपानेर, नाउ पेज नंबर 23 एंड द स्टेपवेल ऑफ रानी रुदा देवी की वाव अडालज की, ये वहाँ के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर है। अमंग अदर आर्किटेक्चर्स ऑफ गुजरात, हौज ए कुतुब that is Kakariya Lake and Naginawadi. The Bois Fort, Khambat and Dholka's Mosque can be considered as major architects. तो दूसरे आर्किटेक्ट्स गुजरात के उसमें हैं हौज ए कुतुब, जिसको आज हम काकरिया लेक से जानते हैं, और नगीनावाड़ी। डबोइस फोर्ट, खम्बाट एंड धोलका मस्जिद ये मेजर मुख्य आर्किटेक्ट माने जाते हैं। The Sidi Sayed Jali is world famous among special architectures of Ahmedabad. Window of Sidi Sayed Jali has special type of lattice work. It is extremely fine carving in stone. It is considered as one of the finest architectural specimens in the world.
तो सीधी सैयद जाली अहमदाबाद की विशिष्ट आर्किटेक्चर में आती है, शामिल है। वो सीधी सैयद की जाली वो विश्व में प्रसिद्ध है। उसकी जो खिड़की है, उसकी जाली एक ख़ास तरीके की लैटिस वर्क जाली का काम किया है और ये कारीगरी पत्थर पे की गई है। ये पूरी दुनिया का सबसे अच्छा आर्किटेक्चरल नमूना है। अ जैन सेज नेम Padalipuri built Jain temples on Satrunjay hills in Palitana. Pavapuri and Palitana are the places with maximum temples on the hill in one place in the world. All the 24 Tirthankars are seated here. Like Pavapuri and Samet Sikhar, Palitana is also a great pilgrimage site for the Jains. तो जैन पालिताना में पडिलिप्त सूरी नाम का एक जैन साधु ने शतरंजय पर्वत पर जैन मंदिर बनवाए। पावापुरी और पालिताना ये दो जगह सबसे ज़्यादा पर्वतों पर मंदिर है। सभी 24 तीर्थंकर वहाँ पे विराजमान है। पावापुरी और समेत शिखर की तरह पालिताना जैनों का एक यात्रा धाम है। Palya is one of the unique architectures in Gujarat. Some stories of valor are connected with Palyas. Mostly, Palyas of such warriors are built on the battlefield or at the place of their death. These Palyas were worshipped once in a year as per the date of their death. The best example of Palya in Gujarat includes Suraj Kuwarbano Palyo in Buchar Mori near Jamnagar and Hamirji Gohil Palya near Somnath temple. Now Palya, the picture is given on the left hand side. So this Palya, गुजरात में पालिया एक विशिष्ट आर्किटेक्चर है। पालिया के साथ वीरों की गाथा कहानी जुड़ी हुई है। खास तौर पे ये पालिया योद्धा के लिए युद्ध भूमि में या तो जहाँ उनकी मृत्यु हुई है वहाँ पर बनाए जाते हैं। ये पालिया की पूजा साल में एक बार मृत्यु की तारीख के दिन होती है। गुजरात में उत्तम पालिया का उदाहरण जामनगर के पास भूचर मोरी का, सूरज कुंवरबा का और सोमनाथ मंदिर के पास हमीरजी गोहिल के पालिया ये दो शामिल है। Now turn your page number 24. Paintings. The progress in the art of painting dates back to the time of Babur. There were special texts on painting like Gulshan Chitravali, Hamzanama. A gallery was set up in Agra under the leadership of a great painter named Akariza. Painters of this period have specially painted pictures of animals, birds and flowers. Making of portraits dates back to the time of Akbar, while special festivals and occasions were also painted during the time of जहांगीर। तो बाबर के समय से पेंटिंग्स यानी चित्रकला का विकास देखने को मिलता है। चित्रकला पे गुलशन चित्रावली, हमजनामा विशिष्ट ग्रंथ था। अकारिजा नाम के महान चित्रकार के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की गई थी। यह समय के चित्रकारों ने पशु पक्षियों के चित्र और पुष्पों के चित्र विशिष्ट तरीके से तैयार किए हैं। अकबर के समय से पोर्ट्रेट यानी प्रतिमा या तो स्टैच्यू या तो तस्वीर की शुरुआत हुई और जहांगीर के समय में जो विशिष्ट त्योहारें और ओकेज़न यानी अवसर के चित्र बनाए गए। लाइक द मुगल पेंटिंग, मेवाड़, जयपुर, मारवाड़ एंड कोटा स्टाइल्स आर फेमस इन राजस्थान। द गुजराती स्टाइल वॉज एलिक्वेंट, सिंपल, डिपिक्टिंग स्टोरी एलिमेंट. It was vivid and had a touch of folk element in it. तो मुगल चित्रकला की तरह मेवाड़, जयपुर, मारवाड़ और कोटा स्टाइल राजस्थान में प्रसिद्ध है। गुजराती स्टाइल वो एलोक्वेंट यानी सुवक्ता थी,
सिंपल, सादी और कहानी को डिपिक्ट करती थी, कहानी का वर्णन करती थी, को देखने को मिलती थी। उसमें लोक संगीत भी की झलक भी दिखती थी। म्यूज़िक, Indian Sufi music as well as Islamic Sufi music began during the Sultanate. In this field, Amir Khusro created Qawwali and introduced Khayal Paddhati instead of Dhrupad. Sarangdev of Devgiri wrote a book called Sangeet Ratnakar, and Haripal Dev of Gujarat wrote a book called Sangeet Sudhakar. Tansen was a great artist associated with classical singing in Akbar's time. सल्तनत युग में भारतीय संगीत के साथ साथ इस्लामिक सूफी संगीत का आरंभ हुआ। इस क्षेत्र में अमीर खुसरो ने कव्वाली की रचना की और ध्रुपद की जगह पर ख्याल पद्धति को दाखिल किया। देवगिरी के सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर और गुजरात में हरिपाल देव संगीत सुधाकर नाम का ग्रंथ लिखा था। अकबर के समय में तानसेन शास्त्रीय गाने के साथ जुड़े हुए सबसे महान कलाकार थे। Then literature. In the Middle Ages, many writers have created significant text by understanding different subjects. The information of some of the text is as follows. तो मध्य युग में बहुत सारे साहित्यकारों ने अलग अलग विषयों में एक महत्वपूर्ण टेक्स्ट की रचना की। अलग विषयों को समझकर वो ग्रंथों की जानकारी नीचे दी गई है। द टेबल इज़ गिवन वेयर द नेम ऑफ द टेक्स्ट इज़ गिवन एंड हु हैड रिटर्न इट और कंपोज्ड इट, द नेम ऑफ दैट पर्सन इज़ गिवन। द फर्स्ट सिद्ध हेम शब्द अनुशासन, इट वॉज कंपोज बाय हेमचंद्राचार्य। गीता गोविंदम जयदेव, हितोपदेश नारायणा, सिद्धांता शिरोमणि एंड लीलावती भास्कराचार्य, पृथ्वीरासो चांद बरदाई. So these are the names of some of the text and its composer. Then folk dances and handicraft. Gujarat has become famous all over the world for its folk culture, folk dance, handicraft and embroidery. It also includes drama like Bhavai. The credit for writing and enacting goes to Asit Thakar. In the Jalawar area, pastoralist cattle rearers play a special type of ras called hudo. People from various parts of the country and abroad come to see hudo in Gujarat at the time of Tarnetar fair. तो फोक डांसेस यानी लोक नृत्य, फोक डांस। गुजरात अपने लोक नृत्य, लोक संस्कृति, हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला और एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, बुनाई, भरतकाम के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। उसमें भवाई नाटक का भी समावेश होता है। भवाई का लिखना और अभिनय करना, एनेक्टिंग, अभिनय करने का श्रेय आसित ठाकर को जाता है। झालावाड़ विस्तार में जो पेस्ट्रियोलिस्ट यानी जो पशुपालन करते हैं, वो एक विशिष्ट तरह का रास रचाते हैं जिसे हम हुडो कहते हैं। तरनेतर के मेले में हुडो रास को देखने के लिए देश विदेश से लोग गुजरात में आते हैं। नाउ पेज नंबर 25. Navratri Garba festival is important in Gujarat. The pride of Gujarat Garba is associated with the worship and praise of goddess Shakti. From the time of Dayaram, Garbi processed a lot. Both men and women celebrate this festival in Navratri, playing Garba, Garbi and Ras. So गुजरात में नवरात्रि गरबा उत्सव बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुजराती गरबा माँ की शक्ति की आराधना और पूजा से जुड़ी हुई है। दयाराम के समय से गरबी का विकास हुआ है। स्त्रियां और पुरुष दोनों नवरात्रि में गरबा और रास द्वारा उत्सव मनाते हैं। गुजरात हैज़ अ वैरायटी ऑफ कॉस्ट्यूम्स इन विच एम्ब्रॉयडरी ऑफ कच्छ, बीडवर्क, पटोला ऑफ पाटन, बंधनी ऑफ जामनगर एंड जेतपुर हैव बिकम वर्ल्ड फेमस. Embroidery work done by ladies of Banni and Khadir areas of Kutch is in great demand all over the world. In the same way, Patola of Patan
associated with spatial weaving has become world famous from 11th to 12th century. तो गुजरात के कॉस्ट्यूम्स यानी कपड़े जो पहनते हैं, पहनावे में भी कई विशेषताएं हैं, जिसमें कच्छ का कढ़ाई काम, पाटन का पटोला, बांधनी ऑफ जामनगर एंड जेतपुर ये विश्व विख्यात है। कच्छ की बन्नी और खादीर विस्तार की स्त्रियां के द्वारा तैयार किए गए एम्ब्रॉयडरी वर्क, कढ़ाई बुनाई का काम पूरे विश्व में उनकी मांग है। उसी तरह पाटन के पटोला जो 11वीं-12वीं सदी से है, उनकी विशिष्ट बुनाई के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो पटोला ऑफ पाटन, द पिक्चर इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। Urbanization. It was the time of the Renaissance and development of cities. New cities emerged in place of the cities of Gupta period. The capitals of the Rajput era mostly turned into cities. In Gujarat, special development of Anhilwad, Patan, Champaner, Ahmedabad, Surat, Khambhat took place. So urbanization ये समय शहरों के पुनः उत्थान, रेनेसेंस यानी पुनः उत्थान और विकास का था। गुप्ता युग में शहरों की जगह पर नए शहर उभर आए। राजपूत युग की राजधानी शहरों में बदल गई। गुजरात में अनहिलवाड़, पाटन, चांपानेर, अहमदाबाद, सूरत और खंभात ने उसकी जगह ले ली। द एक्सट्रीमिटी ऑफ अर्बनाइजेशन इज सीन इन दिल्ली. इट डेवलप्ड फ्रॉम द राजपूत पीरियड टू द मुगल पीरियड. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां, Delhi was the capital and a major center of trade and commerce. शाहजहां built the Red Fort and expanded Delhi. तो शहरीकरण की लिमिट दिल्ली में देखने को मिलती है। राजपूत युग से मुगल युग तक उसका विकास हुआ। जहांगीर और शाहजहां के सामने दिल्ली राजधानी और व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। शाहजहां ने रेड फोर्ट बनवा के दिल्ली को एक्सपांड कर दिया। Lahore, Jaunpur and Dhaka developed as cities during this period as they came on the way of trade route. Amritsar was also an important urban center due to Sikhism. In South India, Devgiri, that is today's Daulatabad, was a prosperous urban center connecting north and south. Cities like Pune, Satara, Gwalior and Vadodara developed during the Maratha Empire, while Diu, Daman, Goa, Mumbai, Chennai, Pondicherry, Kochi, Chandranagar and Surat developed specially as urban center with the arrival of European countries. तो लाहौर, जौनपुर, ढाका ये व्यापारी मार्ग पे आते थे, इसी वजह से वो शहर के रूप में उनका विकास हुआ। सिख धर्म के कारण अमृतसर भी एक महत्व का शहरी केंद्र बन गया। साउथ इंडिया में देवगिरी एक समृद्ध शहरी केंद्र बन गया जो नॉर्थ और साउथ को जोड़ता था। मराठा साम्राज्य का पूना, सतारा, ग्वालियर और वडोदरा जैसे शहरों का विकास हुआ और यूरोपियन कंपनियों के आगमन से दीव, दमन, गोवा, मुंबई, चेन्नई ये सब को शहरी केंद्र के रूप में उनका विशिष्ट रूप से विकास हुआ। द कैपिटल ऑफ विजयनगर वॉज हम्पी. Foreign travelers who came to Hampi have briefed about Hampi's unique craft industries. Goods including cotton cloth, silk cloth and spices were sent from Vijayanagar to Europe. 3 types of gold coins have been found in Hampi, indicating that Hampi was a major center of trade and commerce. तो विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। हम्पी में आए हुए विदेशी मुसाफिरों ने हम्पी के विशिष्ट हस्तकला, क्राफ्ट उद्योग की माहिती दी है। विजयनगर से कॉटन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ एंड स्पाइसेस यानी मसाले जो थे वो सब चीज़ें यूरोप तक जाती थी। हम्पी में से 3 तरह के कॉइन्स मिले हैं, जिससे ये मालूम होता है कि हम्पी व्यापार और वाणिज्य का एक मुख्य केंद्र था। आफ्टर द पोर्ट्स ऑफ भरूच and Khambhat in Gujarat, Surat was an important trading center of India, especially in the 16th century. World famous merchants like Virji Vora and Gopi Malik lived in Surat. Muslin, cotton textile and shipbuilding industries
flourished in Surat in the 17th century. World's largest trade of zari embroidery textile took place from Surat only. तो गुजरात के भरूच और खंभात बंदर के बाद 16वीं सदी में सूरत इंडिया का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वीरजी वोरा और गोपी मलिक जैसे विश्वविख्यात व्यापारियों सूरत में रहते थे। सूरत में 17वीं सदी में मसलिन, कॉटन क्लॉथ और जहाज बनाने का उद्योग विकसित हुआ। जरी भरत एम्ब्रॉयडरी वर्क का पूरे विश्व में सबसे बड़ा व्यापार सूरत में होता था। सूरत वॉज एन इंटरनेशनल पोर्ट। सो नाउ टर्न योर पेज. So many trade associations of India and European were found here. Surat also had large godowns of spices, cotton and silk fabric and indigo. Due to the industries operating in Surat, foreign trade ancillary skills industries such as warehouse, packing, shipbuilding industries, housing arrangement, weaving, printing, metallurgy were extensively developed. तो सूरत एक अंतर्राष्ट्रीय बंदर होने के कारण भारतीय और यूरोपियन व्यापारियों के अनेक व्यापारी संस्था ऑर्गेनाइजेशन यहाँ देखने को मिले हैं। सूरत में स्पाइसेस यानी मसाले, कॉटन और सिल्क का कपड़ा और इंडिगो यानी घड़ी के बड़े गोदाम थे। सूरत में उद्योग व्यापार चलने के कारण और विदेशी व्यापार के कारण एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ यानी सहायक सपोर्ट करने उससे जो जुड़े हुए थे, ये सब व्यापार के साथ जो जुड़े हुए थे वो उद्योगों का भी विकास हुआ। जैसे कि गोदामों सब चीज़ों रखने के लिए, पैकिंग सामान पैकिंग करने के लिए, जहाज बिल्डिंग का उद्योग, रहने की व्यवस्था, बुनाई कला वीविंग, प्रिंटिंग छाप कला, मेटलर्जी धातु कला, इन सब का बड़े पैमाने पे विकास हुआ। सो स्टूडेंट्स, here we have completed your 4th chapter, and with the completion of this chapter we have completed our social science portion of semester 1.